Hello everyone, myself Priya Shah and I welcome all of you to another series of Indian Contracts Act. Today we are going to study about consent. We already know that consent is an essential element under Section 10 of Indian Contracts Act to formulate an agreement into a contract. But now what we are going to study is a consent should be voluntary. दैट मीन्स एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हम जिस कंसेंट की बात कर रहे हैं वो कंसेंट वॉलंटरी कंसेंट होना चाहिए. अब वॉलंटरी कंसेंट यानी क्या, वो भी मेंशन किया गया है सेक्शन 14 में. सो वी विल स्टेप बाय स्टेप लुक एट ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स एंड फॉर्मुलेट एंड क्लियर आवर माइंड कि कंसेंट का एक्चुअल मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनोलॉजी में क्या समझते हैं. कंसेंट डिफाइन किया है सेक्शन 13 में. इट स्टेट्स दैट two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. Now हमने ये जो मीनिंग है वो ऑलरेडी किया हुआ है when we talked about the Latin maxim consent ad idem. यानी कि एक कंसेंट प्रॉपरली तब हम कहते हैं जब दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है वो सेम थिंग और सेम सेंस में एंटर करती है. यानी कि आपके कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन कंसिडरेशन है या जो मेन एसेंशियल एलिमेंट्स है उन सब को आप सेम थिंग में समझ रहे हैं और वो जो थिंग है उसका मतलब अगर डिफरेंट है तो आप उनको सेम नेचर में समझ रहे हैं. कंसेंट फ्री कंसेंट है उसको समझने से पहले वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंसेंट अप टू एन कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसेंट है वो वॉलंटरी कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट के पर क्या इफेक्ट आएगा. सो इट इज स्टेटेड अंडर सेक्शन 19 कि इन केस इस कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसेंट है वो वॉलंटरीली नहीं दिया जाता है so the contract becomes voidable at the option of the party whose consent was caused अनविलिंगली. यानी कि वो पार्टी जिनने अपना कंसेंट अनविलिंगली दिया था यानी कि फ्री कंसेंट नहीं था उसके ऑप्शन पे जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल डिक्लेयर हो सकता है. नाउ लेट अस बिगिन दैट व्हेन वी टॉक अबाउट फ्री कंसेंट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स. सो सेक्शन 14 स्टेट्स दैट consent is said to be free when it is not caused by first coercion as defined in section 15, second undue influence is defined in section 16, third fraud is defined in section 17, fourth misrepresentation as defined in section 18, and fifth mistake as defined in section 20, 21 and 22. अब सबसे पहले हम समझेंगे coercion को. section 15 में डिफाइन किया गया है coercion. It states that coercion is committing or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code or unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement. Now we have done the bare reading of the section. Now to understand that what is coercion हम इसको 3 parts में break करते हैं. सबसे पहला कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड. यानी कि अगर आप कोई एक ऐसा एक्ट करते हैं जो एक्सप्लिसिटली इंडियन पीनल कोड में मना किया गया है करने को और आप वो एक्ट के थ्रू यानी कि वो क्रिमिनल ऑफेंस के थ्रू किसी का कंसेंट कॉज करते हैं ताकि द अदर पार्टी एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट, तो वो जो कंसेंट जिस एक्ट से कॉज किया गया है सिंस दैट एक्ट इज not valid and it does not amounts up to free consent, आपका जो अग्रीमेंट है वो voidable हो जाएगा. इसका एक केस है रंगनायकम्मा वर्सेस अलवर सेठी. So in this case of Ranganayakamma versus Alvar Sethi, there is this couple, both husband and wife. But यहाँ पे जो wife है, she is a minor girl who is of 13 years. Now accidentally her husband dies. Here the relatives of the husband, they say that they will not allow this wife to take the corpse of the husband until and unless she agrees to adopt a child. So यहाँ पे what do they do? A sort of contract that if she doesn't adopt a child, she will not get the corpse of her husband. The Madras High Court in the present case held that this consent is not a free consent and it amounts to coercion because the act was not under IPC. That is, this act is prohibited under Indian Penal Code.
but this decision is subject to criticism. Why? Because the higher authority, that is the Supreme Court, held कि हम यहाँ पे जो सेक्शन 15 की बात कर रहे हैं कोअर्जन की, और हमने जो रीजनिंग दिया है कि आईपीसी के अंदर वो नहीं आता है, दिस रीजनिंग इज रॉन्ग. अगर मैं किसी को डेड कॉर्प्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ तो इट कांट बी सेड टू बी अ criminal offense or something which can be penalized. Hence the Supreme Court held that this kind of things will come under section 16, जहाँ पे हम अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं. अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है वो हम देखेंगे. सो आई होप दिस केस इज क्लियर टू यू एंड इट स्टेट्स दैट हाउ डज यू डिफरेंशिएट बिटवीन कोअर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड व्हाट डिड द केस हेल्ड हियर. अब सेकेंड पार्ट इज अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन और प्रेजुडिस टू दैट पर्सन. यानी कि आप कोई भी एक पर्सन जिसका आपको कंसेंट चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसके रिलेटेड कोई भी पर्सन को आप डिटेन करते हैं या आप थ्रेटन करते हैं, यानी कि आप ब्लैकमेल या फिर एक्सटॉर्शन या फिर कोई भी अदर मेथड्स ऑफ डिटेनमेंट यूज करते हैं उस पर्सन के अगेंस्ट, या फिर उस पर्सन की कोई भी प्रॉपर्टी को आप आपके पास रखते हैं, डिटेन करते हैं, या फिर यू थ्रेटन टू डू ऑल दिस एक्ट्स, देन द कंसेंट कॉज्ड विल नॉट बी फ्री कंसेंट. यानी कि आपने कोई भी एक्शंस करके अगर किसी एक पर्सन का कंसेंट लिया है अग्रीमेंट में एंटर करने के लिए, तो दैट कंसेंट विल बी ड्यू टू द कोअर्जन, और कोअर्जन है इसलिए फ्री कंसेंट नहीं होगा. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए और बी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए आए, लेकिन बी वॉज नॉट विलिंग टू एंटर इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट. So A said that I will detain your wife, that is I will kidnap your wife C if you don't enter into an agreement. तो यहाँ पे B का जो कंसेंट है वो कैसे कॉज किया गया? A ने कोर्स किया उसको कि if you do not sign this agreement, what I will do is I will detain your wife. यानी कि he threatened to do such act, and because of that act B agreed to enter into a contract. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो B के ऑप्शन पे वाइडेबल हो जाएगा. जो थर्ड पार्ट है वो ये बोलता है कि अगर फर्स्ट दो एक्ट्स करके आपका इंटेंशन ये था कि आप किसी भी पर्सन को आपके एक्ट्स के थ्रू एक कंसेंट में लेके आओगे अग्रीमेंट के लिए, तो वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइडेबल बन जाता है. अब जो सेकेंड सिचुएशन हम समझेंगे वो है undue influence. That is, how does an undue influence does not amount to a free consent under an agreement. First, let us begin by reading section 16. कि contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. तो सबसे पहले इस फर्स्ट सेक्शन को समझते हैं. When we read this first section, we get 3 important elements. फर्स्ट ये कि एक रिलेशनशिप होना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं. अब वो रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? तो इनमें से एक पार्टी इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द अदर पार्टी. एग्जाम्पल, अ फादर एंड अ सन. A father is always, in a position to dominate his son. और थर्ड जो है वो है इस पोजीशन का यूज, यानी कि फादर ने इस पोजीशन को यूज करके उसके सन को डोमिनेट किया ताकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके. तो जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती है तब हम बोलेंगे कि एक अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ पे यूज हुआ है. Now let us look at an example which will make us clear कि यहाँ पे हम ये जो undue influence की बात कर रहे हैं सेक्शन 1 में वो किस तरीके से फुलफिल होता है. So here we are talking about A is the father of B and when B was a minor, A ने इसको कुछ पैसे उधार पे दिए. अब B जब मेजर हो गया तब A ने बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस एक बॉन्ड साइन करवाया B से कि ये जो पैसे लोन पे दिए हैं वो उसको वापस रीपे करेगा बट अ हायर अमाउंट. एंड बिकॉज ऑफ व्हाट हिज फादर सेड बी साइन द बॉन्ड. सो द कोर्ट हियर सेड और विल से दैट ये जो एक्ट है वो एक्ट आ जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर. सो नाउ सी विल ट्राई टू रिलेटेड विद द एलिमेंट्स कि यहाँ पे ए और बी के बीच में रिलेशन था सबसिस्टिंग.
एग्जैक्टली था। यहाँ पे ए वॉज फादर एंड बी वॉज माइनर सन, तो ए एक पोजिशन में भी था डोमिनेट करने के लिए, और ए ने उसका ये पोजीशन यूज करके उससे एक बॉन्ड साइन करवाया और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया। हेंस यहाँ पे जो यूज है वो यूज की भी हम प्रॉपरली बात करते हैं। Now let us read section 2. It states that in particular and without prejudice to the generality of the foregoing principle, a person is deemed to be in a position to dominate will of the another when. तो हम ये जो पोजीशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम कैसे क्लासिफाई करेंगे कि पोजीशन थी या नहीं थी? सो हियर वी हैव दिस टू कैटेगरी। जो फर्स्ट है वो है एक रियल और अपेरेंट अथॉरिटी होना चाहिए एक पार्टी का दूसरे पार्टी के ऊपर, या फिर फिड्यूशियरी रिलेशन होना चाहिए। तो अपेरेंट अथॉरिटी में हम एग्जाम्पल देख सकते हैं डेटर एंड क्रेडिटर का, जो हमने ए और बी में देखा है, और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप यानी कि एक ट्रस्ट रिलेशनशिप, जैसे हम देख सकते हैं एक फादर एंड सन का, और अ मदर एंड अ सन, और अ मदर एंड अ डॉटर। एनी ऑफ दिस रिलेशनशिप विल कम अंडर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। तो अगर एक अपेरेंट अथॉरिटी है या फिर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है तो हम उनको डिफाइन करेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर, और एक ऐसा पोजीशन जहां पे वो इस डोमिनेशन का यूज कर सकते हैं। और थर्ड ऐसा बोलता है कि व्हेन अ पर्सन हु इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, सो ही एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज एन एविडेंस adduced that it is unconscionable the burden of proving। जब हमने एविडेंस एड्यूस किया है तो इट इज बट ऑब्वियस टू बी प्रूव्ड कि ये जो बर्डन है कि कॉन्ट्रैक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया गया था या फिर कॉन्ट्रैक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं यूज किया गया था, वो बर्डन किस पे है उसकी बात कर रहे हैं हम सेक्शन 3 में। इट स्टेट्स दैट इट शैल लाई अपॉन द पर्सन in a position to dominate the will of the other। एग्जाम्पल के ये केस में जो है A, because A was in a position to dominate, A will have to prove कि उसने undue influence यूज नहीं किया है। अब इसका रीजन क्या, सब क्लॉज 3 में हमने ऐसा कहा है कि A will have to prove। What is the reason? The reason is simple that A is in a position to dominate। तो बट ऑब्वियस है कि ए एक ऐसे पोजीशन में है कि वो शायद एविडेंस के साथ भी छेड़छाड़ कर सके, या फिर बी को वापस डोमिनेट करके झूठी टेस्टिमनी दिलवा सके, या फिर झूठा एविडेंस अड्यूस कर सके। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उस पे लाई करेगा जिसके पास पोजीशन थी। थर्ड सिचुएशन है फ्रॉड। फ्रॉड डिफाइन किया गया है सेक्शन 17 में। इट स्टेट्स दैट fraud means and includes any of the following acts committed by the party to a contract or with the convenience of his agent and with intent to deceive the party thereto or his agent or to induce him into any contract। अब जो सेक्शन 17 है वो 5 ऐसे टाइप्स के एक्ट्स बोलता है, देन इट अमाउंट्स टू फ्रॉड। फ्रॉड का बेसिक मतलब हम ये समझ सकते हैं कि आपके इंटेंशन से किसी को एक ऐसा स्टेटमेंट बोलते हैं जो you believe is not true, then to you say that statement, ताकि जो false statement है उस false statement को ध्यान में रख के other party consents to an agreement। अब जो first act बोला है section 17 सब clause 1 में वो है the suggestion as a fact of that which is not true by someone who believes it to be true। यानी कि आप एक ऐसा स्टेटमेंट बोलते हैं जो आपको पता है ट्रू नहीं है यानी कि फॉल्स है, लेकिन सामने वाली पार्टी को नहीं पता है। तो व्हाट यू डू इज यू से अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड यू टेक द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। सेकेंड है देयर इज एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ इट्स ट्रूथ। यानी कि एक फैक्ट जो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्क्लोज करना, वो फैक्ट आपको मालूम है बट स्टिल यू कंसील इट, यानी कि आप वो फैक्ट अदर पार्टी को नहीं बोलते हैं, देन ऑल्सो दिस एक्ट अमाउंट टू फ्रॉड। थर्ड है अ प्रॉमिस मेड विदाउट द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। आपने जो कंसिडरेशन दिया है आपकी सर्विस का या फिर आपके प्रॉमिस का, यू डू नॉट इंटेंड टू परफॉर्म इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू फ्रॉड। फोर्थ है जनरलाइज कर दिया है कि कोई और चीज जो एक फ्रॉड के कैटेगरी में फिट हो सकती है, दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू फ्रॉड। नाउ हु डिसाइड्स दिस?
This is on the basis of facts of the cases and how does the judiciary applies their mind in the same. Fifth है any such act जो एक particular law expressly declare करता है to be fraudulent, and if you do such act which is expressly implied not to do, it amounts to fraud. अब एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा है कि mere silence does not amounts to fraud, यानी कि ऐसा कोई फैक्ट जो बताना जरूरी था लेकिन आपकी ड्यूटी नहीं थी बताने की. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन समथिंग व्हिच इज ऑब्लिगेटेड एंड यू हैव अ ड्यूटी टू डू सो. नाउ इफ यू वुड हैव सेड दैट फैक्ट, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अग्रीमेंट वुड बी डिफरेंट, यानी कि शायद आपने वो फैक्ट बताया होता और सामने वाली पार्टी ने अग्रीमेंट पे आने से मना कर दिया होता, लेकिन आपकी कोई ड्यूटी नहीं थी फैक्ट डिस्क्लोज करने की, इसलिए आपने वो फैक्ट नहीं बताया. यू रिमेन साइलेंट. दिस विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. अब इसको दो एग्जाम्पल से समझेंगे. एक एग्जाम्पल जहां पे ड्यूटी थी डिस्क्लोज करने की और एक एग्जाम्पल जहां पे ड्यूटी नहीं थी. फर्स्ट इज ए विशेस टू सेल अ हॉर्स टू बी. अब ये जो हॉर्स है वो थोड़ा अनसाउंड है, बट यहाँ पे until and unless बी आस्क सामने से कि आपके हॉर्स में कोई डिफॉल्ट है, ए डजंट हैव द ड्यूटी टू स्पीक. सो इफ ही सेल्स द horse to B, the contract will be perfectly valid. It cannot be said that consent was because of any fraud. But in the other situation, the person to whom he is selling, यानी कि B, वो है A की डॉटर. तो अब यहाँ पे जो है A की ड्यूटी हो जाती है उसको बोलने की कि हॉर्स जो है वो अनसाउंड माइंड का है, क्योंकि B जो है वो रिसेंटली अभी इस एज पे पहुंची है. नाउ व्हेन शी कम्स टू दिस एज शी माइट नॉट नो व्हाट आर द अदर बैकग्राउंड्स, इसलिए यहाँ पे A की ड्यूटी होती है एज अ फादर दैट ही स्टेट्स अबाउट ऑल द फैक्ट्स रिलेटिंग टू द हॉर्स टू B. सो आई होप ये दो जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे आपको क्लियर हो गया कि कहाँ पे ड्यूटी होती है डिस्क्लोज करने की और कहाँ पे ड्यूटी नहीं होती है डिस्क्लोज करने की. अब फ्रॉड के अगेंस्ट आप एक एक्सेप्शन यूज करते हैं, यानी कि इफ अ पर्सन इज एलिजिंग मी दैट आई हैव कमिटेड फ्रॉड, आई कैन यूज अ डिफेंस दैट जिस पर्सन ने एलिज किया है उसके ऊपर एक ड्यूटी थी, एक ऑब्लिगेशन था कि वो ड्यू डिलिजेंस करके ट्रूथ जो है और जो वेरासिटी है उसको चेक कर सके, लेकिन उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं की, इसलिए आई कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी एक्ट्स ऑफ फ्रॉड. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. ए जो है उसने बी को ऐसा कहा कि मेरी फैक्ट्री में 500 माउंट्स ऑफ इंडिगो बनते हैं, राइट. नाउ बी बिकॉज ऑफ दिस एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले बी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक की और वहां से उसको ये पता चला कि सिर्फ 400 माउंट्स ऑफ इंडिगो फैक्ट्री में बनता है. ये ट्रूथ जानने के बाद भी वो एक अग्रीमेंट पे एंटर करता है, तो अब ही कैन नॉट स्टेट इन फ्यूचर दैट ए ने उसके साथ एक फ्रॉड कमिट किया है. द फोर्थ सिचुएशन इज मिसरिप्रेजेंटेशन व्हिच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 18. अब ये जो तीनों क्लॉजेज हैं मिसरिप्रेजेंटेशन के, वो एक यही बात बोलते हैं कि शायद आपने ऐसा कोई स्टेटमेंट बोला जो आपको ही नहीं पता कि झूठ था, यानी कि यू बिलीव दैट स्टेटमेंट टू बी ट्रू और उसी गुड फेथ में आपने जो है वो स्टेटमेंट सामने वाली पार्टी को भी बोल दिया. नाउ बिकॉज ऑफ दैट स्टेटमेंट पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो स्टेटमेंट जो आपको खुद को लगा ट्रूथ है लेकिन आपने सामने वाली पार्टी को बोला, तो वो हो जाता है मिसरिप्रेजेंटेशन. फ्रॉड में और मिसरिप्रेजेंटेशन में यही डिफरेंस है कि फ्रॉड में इंटेंशन होता है और मिसरिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन नहीं होता है. 18th का जो सेक्शन है उसमें जो वर्ड्स दिए हैं प्रोविजंस के, उनको देख के हम समझते हैं कि व्हाट डज इट एक्चुअली स्टेट्स. Section 18 subclass 1 states that misrepresentation means and includes any positive assertion in a matter not warranted by the information of the person making it of that of which it is not true though he believes it to be true. यानी कि आप ऐसा कोई अनवारंटेड स्टेटमेंट बना रहे हैं जो आपको खुद को नहीं पता कि वो एक झूठ है, आपको खुद को यही लगता है कि वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रूथ है. नाउ सेकेंड सबसेक्शन स्टेट्स दैट breach of duty without an intent to deceive gains an advantage to the person committing it or anyone claiming under him. यानी कि आपने आपकी ड्यूटी ब्रीच की लेकिन आपका इंटेंशन नहीं था वो ड्यूटी ब्रीच करने का, अनइंटेंशनली यू ब्रीच्ड दैट ड्यूटी एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्रीच आपको एक एडवांटेज होता है, तो दिस सिचुएशन विल ऑल्सो कम अंडर मिसरिप्रेजेंटेशन. Section 3 states that
however innocent and party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject of the agreement. यानी कि आपका भले इंटेंशन नहीं था मिसरिप्रेजेंट करने का, still you did. That means you are innocent here. Still जो सब्जेक्ट मैटर है उसके रिलेटेड मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, क्योंकि मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से पार्टीज आई है कॉन्ट्रैक्ट में, आपको नहीं पता था, उनको भी नहीं पता था, बट गलत इन्फॉर्मेशन तो पास हुई है. तो हमारा जो मेन मोटिव है कंसेंट एड इडम का, वो तो यहाँ पे फुलफिल ही नहीं होगा, बिकॉज बोथ द पार्टीज हैड नॉट कंसेंटेड ऑन द सेम थिंग. हेंस हम मिसरिप्रेजेंटेशन को एक क्राइटेरिया मानते हैं एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करने का. अब जो लास्ट सिचुएशन है वो है मिस्टेक. मिस्टेक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मिस्टेक तो आपको पता है क्या होता है. मिस्टेक यानी कि एक गलती जो आप करते हैं. नाउ इट कैन बी रेड विथ 4 सेक्शंस 13, 20, 21 एंड 22. अब 13 में तो हमें मालूम है कि कंसेंट एड इडम का जो एक्सप्रेशन है वो मेंशन किया है. अब उसको हम मिस्टेक से कैसे रिलेट करते हैं मैं वो समझाती हूँ. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एब्सेंस ऑफ कंसेंट अंडर सेक्शन 13, वी डोंट टॉक अबाउट कंसेंट एज होल. यानी कि कंसेंट नहीं था, हम वो नहीं बोल रहे हैं. हम ये बोल रहे हैं कि कंसेंट एड इडम नहीं था, यानी कि दो पार्टी सेम थिंग और सेम नेचर पे अग्री नहीं हुई थी. अभी किन किन केसेस में हो सकता है, तो 3 केसेस में. पहला तो है कि देयर इज मिस्टेक रिलेटिंग टू आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन. दूसरा तो है कि देयर इज मिस्टेक रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर. और तीसरा है देयर इज मिस्टेक रिलेटेड टू आइडेंटिटी ऑफ अ ट्रांजैक्शन. इन तीनों के हम एक एक केस लॉ देखेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाएगा कि ये जो मिस्टेक्स है वो किन टाइप की मिस्टेक्स हो सकती है. सो मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी ऑफ पर्सन में हम स्टडी करेंगे द केस ऑफ बॉल्टन वर्सेस जोन्स. अब देखिए, इस केस में वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन एक्स जिसने अपना बिजनेस सेल कर दिया प्लेंटिफ को. अब ये जो डिफेंडेंट है, ही वॉज अ क्लाइंट ऑफ एक्स, बट ही डिड नॉट नो कि एक्स ने अपना बिजनेस सेल कर दिया है. तो डिफेंडेंट ने एक परचेज प्लेस किया, यानी कि एक ऑर्डर प्लेस किया. अब सिंस इसने अपना बिजनेस बेच दिया है प्लेंटिफ को जैसे ही पता चला ये ऑर्डर का, प्लेंटिफ ने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, यानी कि जो भी गुड्स थे वो सप्लाई कर दिए. अब डिफेंडेंट जो है, ही कंज्यूम्ड दोज गुड्स. आफ्टर कंज्यूमिंग उसको पता चलता है कि बिजनेस जो है वो बेच दिया गया है, बिकॉज प्लेंटिफ सेंट एन इनवॉइस कि भाई आपने गुड्स तो कंज्यूम कर लिए, अब टाइम टू पे द मनी. डिफेंडेंट ने ऐसा बोला कि मैंने जो ऑर्डर है वो इसीलिए प्लेस किया था बिकॉज आई हैड सम मनी लेफ्ट टू बी टेकन फ्रॉम एक्स. एक्स को मुझे कुछ पैसे देने बाकी थे और उसके सेट ऑफ के लिए मैंने ऑर्डर प्लेस किया था. आई डिड नॉट नो कि जो बिजनेस है वो सेल हो चुका है एंड आई विल हैव टू पे यू द मनी. सो दिस वेंट टू कोर्ट. कोर्ट हेल्ड दैट देयर इज अ मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन. डिफेंडेंट थॉट मिस्टर एक्स के साथ वो बिजनेस कर रहा है, बट द एक्चुअल बिजनेस वॉज with the plaintiff. Hence, the defendant was not held to be liable because mistake as to the identity of the person is excused. Up to understand the mistake as to identity of subject matter, we have the case of Bell versus Leaves Brother Limited. अब ये जो डिफेंडेंट कंपनी है, इट वॉज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ अ कंपनी X. और इस सब्सिडरी कंपनी में जो प्लेंटिफ है उसको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था फॉर सर्टेन सैलरी विच वॉज $8,000 पर ईयर. ठीक है. अब थोड़े टाइम बाद ये जो कंपनी है वो कंपनी अमेलगेमेट हो गई दूसरी कंपनी के साथ, और ये डायरेक्टर जो था यानी कि प्लेंटिफ की जो जॉब है, इट वॉज नाउ नो मोर रिक्वायर्ड. So he claimed a compensation of 30,000, which the company paid. So they entered into a contract. The subject matter of contract was to pay compensation. डिमांड किया प्लेंटिफ ने, पे कर दिया डिफेंडेंट ने. लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद डिफेंडेंट को पता चलता है कि ड्यूरिंग हिज टर्म, यानी कि जब प्लेंटिफ टर्म में था तब उसने उसकी ड्यूटी का ब्रीच किया था.
and because of that breach of duty it was not required to pay the compensation. And since this fact was not known to the defendant, the contract could be reversed. यानी कि $30,000 has to be paid again by the plaintiff to defendant. क्योंकि यहाँ पे अगर ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई थी ये मालूम होता डिफेंडेंट को, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है कॉम्पेंसेशन उसके रिलेटेड उनको मिस्टेक नहीं होती, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं करते. इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि अगर आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर के रिलेटेड भी मिस्टेक होती है तो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम या तो डिक्लेयर कर सकते हैं वॉइडेबल, या तो फिर अगर जजमेंट आ चुका है तो वी कैन रिवर्स इट. अब थर्ड इज मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन. इस केस में petitioner was of view that he is signing a power of attorney, but actual में he signed a gift deed. तो क्या आप ये gift deed enforce करवा सकते हैं कोर्ट में? No. So here the nature of transaction is such that he had a mistake about signing a gift deed whereas he was actually signing it. Hence, such kind of mistakes can also be categorized to make a contract voidable. अब बात करते हैं सेक्शन 20 की. So what does section 20 reads? It states that when both the parties to an agreement are under a mistake as to the matter of fact. यहाँ पे दोनों पार्टीज को एक फैक्ट के रिलेटेड मिस्टेक है. एग्जाम्पल, A agrees to buy from B a certain horse. It turns out that horse was dead at the time when they entered into an agreement. अब यहाँ पे हॉर्स मर गया है, इसका इंफॉर्मेशन ना A के पास था ना B के पास था. However, they entered into an agreement. तो it is a matter of fact कि हॉर्स मर गया है, जिससे दोनों को नहीं पता था, ना A को पता था ना B को पता था. So here what does it becomes? It becomes voidable. अब section 21 क्या बोलता है वो देखते हैं. Section 21 states a contract is not voidable because it was caused by mistake as to any law in force in India. But a mistake as to law not in force in India has the same effect as a mistake of fact. अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पार्ट तो ये कि इफ यू आर अनअवेयर ऑफ द लॉ ऑफ लैंड, यानी कि आप इंडिया में रहते हैं लेकिन आपको इंडिया के लॉ नहीं पता है, यू आर मिस्टेकन अबाउट अ लॉ, दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज. मिस्टेक ऑफ लॉ आप कभी भी एक एक्सक्यूज नहीं ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए और पर से एनी अदर एग्रीमेंट और एनी अदर फैक्ट फॉर द मैटर. लेकिन आप इंडिया के सिटीजन है और आप कहीं बाहर जाते हैं और आपको उस लैंड के लॉज नहीं पता है, तो वो आप एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनकी मिस्टेक के रिलेटेड बोल सकते हैं. लेकिन आप इंडिया में रहते हुए ये एक्सक्यूज कभी यूज नहीं कर सकते हैं कि आपको इंडिया के लॉज नहीं मालूम है. एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं. A and B make a contract grounded on the erroneous belief that a particular debt is barred by Indian law of limitation. उनको ये बिलीव है कि ये जो डेट है वो बार्ड है इंडियन लिमिटेशन से और उसको वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एज अ कंसिडरेशन यूज करते हैं. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि आप एक टाइम बार्ड डेट को कैसे कंसिडरेशन में यूज कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे दे डोंट नो दैट द लॉ, यानी कि वो जो कंसिडरेशन डेट बार्ड है वो डेट बार्ड एक्चुअली है ही नहीं, उनको लॉ की गलत इंफॉर्मेशन है. तो क्या वो इस एक्सक्यूज को एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल करने के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं. दिस कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी हेल्ड वॉइडेबल इन एनी केस व्हाटसोएवर. अब जो लास्ट सेक्शन है वो है 22. व्हाट डज इट स्टेट्स दैट contract is voidable because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to the matter of fact. यहाँ पे एक पार्टी को मिस्टेक है एक मैटर ऑफ फैक्ट के रिलेटेड एंड अदर पार्टी इज एब्सोल्युटली क्लियर. सो आई होप कि आपको ये पांच फैक्टर्स अच्छे से समझ आए एंड नाउ यू आर वेरी क्लियर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कंसेंट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट. I hope to see you soon in the next class which will be taking up about Contracts Act. आपको वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस करें and mention me all the details in the comment section below about the topics which you want me to cover in the upcoming classes. Till then, take care. Bye guys. See you in the next class.